ओके मैम, स्टार्ट कीजिए। Good afternoon, everyone. As we were discussing about the advertising appeals yesterday, now we'll continue the same topic because yesterday we only discussed upon some of the emotional appeals, and I showed you some videos which were using the emotional appeals like the fear. We discussed an advertisement where Yuvraj Singh was talking about his fear when he would not be able to play and how would he manage his expenses. So it was a fear appeal, an emotional appeal where you persuade people, you scare people that if they would not use your product, how would they manage in their life. Okay, so that was the fear appeal when people are afraid of not using your product. Then we discussed one more emotional appeal, that was parental love. Parental love was being shown in the jewelry advertisement where parents are giving jewelry to their daughter on the occasion of their wedding. Then we also discussed some of the funny advertisements like Vodafone Zuzu advertisement. It was a mix of emotional and rational appeal. We also discussed the prestige. We discussed one advertisement of Rolls Royce. And we also discussed the self-display when a guy is using X perfume and all the female are getting attracted to him. So that's how the emotional appeal works, and you can clearly see that here the rationality is not involved. Here they are not making any kind of decision using their features, etc. They are not telling people how they would be benefited if they would purchase this product, but they are just connecting emotionally. Today we'll discuss the rational appeal. In the case of rational appeal, the advertisers try to appeal to logic and reason rather than emotions. यानी जब भी आप rational appeal अपने advertisement में use करते हैं तो आप customers को एक reason देखते हैं कि आपको ये product क्यों खरीदना चाहिए. आप कुछ लॉजिक देते हैं उसके पीछे. जैसे फियर वाले में फियर तो था लेकिन इट वाज अ मिक्स्ड इमोशन एंड रेशनल अपील, बिकॉज इमोशंस भी दिखाए थे कि आप डर रहे हैं, साथ के साथ एक लॉजिक भी था दैट यू नीड टू हैव एन इंश्योरेंस. The focus is on persuading the customer by appealing to his senses, and making a particular purchase is more reasonable. So when you give some rational basis to your customer to purchase a thing, then this purchase would be more reasonable to them. That means they would be more satisfied because they know that what is the basic reason, what is the logic behind purchasing that particular product. Generally, the advertising messages that are product feature based carry a rational appeal. यानी जहां पर प्रोडक्ट के फीचर्स बताए जाते हैं वो एक रैशनल अपील कहलाती है. For example, an advertisement highlights the feature of a product mainly and how these features are superior to those in other products. Another advertisement may highlight the benefits and the lower price. So sometimes the product can show, the advertiser can show that the product is better than others. Suppose I'm watching an advertisement of Colgate and they are showing that the Colgate is better than Pepsodent. So that they are using a rational appeal that it is better than and it is superior to others. Sometimes advertisements highlight the benefits that okay, if you use this product, you'll be benefited in this way. It would make your teeth strong, it would make your gums strong, and it would help you to have a good mouth
fragrance, and it would freshen your mouth. So where you are telling the benefits of using that particular product, that would also come under the rational appeal. Sometimes you show the lower prices. Lower prices means if you are stating that okay, we are selling this product, but in comparison to others it has much lower price, then that is also rationality, that is also rational appeal. This is called the use of rational appeal. You can frequently come across such appeals in the adverts for home appliances or automobiles. आपने देखा होगा कोई automobiles, यानी अगर आपको कार खरीदनी है, I'm not talking about the luxury car, but just talk about the Tata Nano, or you can talk about the Tata other products, or you can talk about the Maruti Suzuki i10 and Maruti 800. When Maruti 800 was being advertised, it was known as the family car because people who could not afford a luxurious car or the costly cars, they were going for those cars. So when it comes to automobiles or technical things or technology based things, usually advertisers use rational appeal. An advertisement that states that your car is most fuel efficient and safest carries the rational appeal. So in the last advertisement we discussed upon the Rolls-Royce, so they were not talking about its features, its suspension, its fuel efficiency. No, they were not talking about anything. But when it comes to the middle ranged cars, they usually talk about its fuel efficiency, safe, and how safe it is, how the suspension works. So that is how you can use the rational appeal. So here we have some types of rational appeal. Let me scan the Q&A box. अगर किसी को rational appeal में कुछ पूछना है, you can ask. या यहाँ पर एक स्टूडेंट ने लिखा है कि अभी कोलगेट की सॉरी पेप्सोडेंट की कोई ऐड है, मैंने भी देखी आई गेस, कि वो सबसे प्यार से बात करता है, या he behaves nicely politely to others. So yes, that is a emotional appeal, जहाँ पर आप लोगों को अच्छा बिहेव करके दिखा रहे, इमोशनली कनेक्ट कर रहे हैं, but at the same time it is rational also when they are telling some benefits of using the Pepsodent. डिफरेंस बिटवीन प्रेस्टीज एंड सेल्फ डिस्प्ले. सेल्फ डिस्प्ले में जब आप अपने आप को किसी से बेहतर दिखाने के लिए कोई प्रोडक्ट यूज करते हैं, और प्रेस्टीज यानी अगर आप कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो से आपकी शान और शौकत बढ़ रही है उससे.
इमोशनल अपील की भी मैं आपको स्लाइड दे, सारी आपको पीपीटी मिल ही जाएगी, या सॉरी लास्ट क्लास में मैं शेयर नहीं कर पाई थी बिकॉज हम 3 बजे तक डिस्कशन ही कर रहे थे। आज मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी। रैशनल अपील जहां पर आप प्रोडक्ट के फीचर्स या फायदे नहीं बताते हैं लेकिन इमोशनली कनेक्ट करते हैं लोगों से कि कैसे ये प्रोडक्ट आपको अच्छा फील करा सकता है, और वो फीलिंग वेरी करेगी पर्सन टू पर्सन। जैसे जॉनसन्स बेबी की मैंने ऐड दिखाई थी कि हाउ इट टेक्स केयर ऑफ योर चाइल्ड लाइक अ मदर। इसमें कोई रेशनैलिटी नहीं है, एक मदर और एक सोप में आप कभी भी कंपैरिजन नहीं कर सकते, बट दे आर जस्ट शोइंग इट सॉरी। So that is how the emotional appeal works. Okay, now let me go back to my PPT and now we will discuss what are the types of rational appeal. Yeah, types of rational appeal. First of all, if you would say that it is economical, that means prices कम है उस product के, इसीलिए आपको खरीदना चाहिए. That means I am using the rational appeal. Health. If something is good for your health, if I'm showing that if you use it, you'll be healthy, that means I'm using a rational appeal. Convenience. If something eases your processes, किसी चीज को यूज करने से आपको कन्वीनियंस मिल रही है, तो वो एक रैशनल अपील होगी. ड्यूरेबिलिटी. अगर कोई चीज बहुत सालों तक चल रही है तो वो रेशनैलिटी होगी. फीचर अपील. किसी प्रोडक्ट में बहुत सारे फीचर्स हैं कि ये भी काम कर सकता है, ये भी काम कर सकता है. रैशनल अपील. नेक्स्ट, competitive advantage. When you state that this particular product is better than the competitor's product, that is competitive advantage. Favorable price appeal. That means प्राइस जो है वो आपके हक में है, यानी अगेन इकोनॉमी जैसा ही है कि प्राइसेस इसके कम है या प्राइसेस इक्वल है लेकिन कुछ ज्यादा फीचर्स हैं, तो वो फेवरेबल प्राइस हो गया. न्यू अपील. न्यू अपील का मतलब है कि कोई नई चीज मार्केट, सॉरी ये न्यूज होना चाहिए, या न्यूज अपील. कोई चीज अगर न्यूज में आई है, जैसे इसमें दिखाते हैं ओरल बी की एड थी आई गेस, या किसी टूथपेस्ट या टूथब्रश की एड थी जिसमें वो कहते हैं कि आईडीए द्वारा प्रमाणित है ये, या फिर न्यूज में भी ये आया है कि दिस इज बेटर देन अदर्स, या दिस इज ऑफ अ सुपीरियर क्वालिटी. तो जब आप स्टेट करते हैं कि न्यूज में ये चीज आई है इसलिए आपको ये खरीदनी चाहिए, दैट इज न्यूज अपील. And the last is popularity appeal. Popularity मतलब कि कोई प्रोडक्ट बहुत पॉपुलर है, बहुत सारे सेलिब्रिटीज यूज करते हैं, इसीलिए आपको ये खरीदना चाहिए. That is also rational appeal. तो ये कुछ तरीके हैं जो आप इंक्लूड कर सकते हैं अपनी एडवर्टीजमेंट में, and you can use the rationality to attract people. कुछ वीडियोस दिखाती हूँ रैशनल अपील की. कल हमने जो वीडियोस देखी थी, एडवर्टीजमेंट्स देखी थी, वो थी इमोशनल अपील. No, rational appeal is not just about the comparison, but includes other things also. Comparison is just a part. It is just a type of rationality. Economy, जहां पर आपको
सस्ता पड़ जाए कोई चीज। एग्जाम आपके ऑफलाइन होंगे। कन्वीनियंस, किसी चीज को यूज करने में बहुत यूजर फ्रेंडली है कोई चीज, दैट इज मेकिंग इट कन्वीनियंट टू यूज। आप किसी प्रोडक्ट, सपोज आप दिखा रहे हैं कि कोई कार है, वो बहुत इजीली ड्राइव हो जाती है, आपको गियर नहीं लगाने पड़ते, सपोज ऑटोमेटिक कार है और भी एडेड फीचर है जो फीचर्स उसको कन्वीनियंट बना रहे हैं यूज करने के लिए, वो है कन्वीनियंस। सपोज कोई हैंड ब्लेंडर है, वो आपको कन्वीनियंस दे रहा है कि आप बहुत देर तक ऐसे मैनुअल हैंड ब्लेंडर से यूज कर रहे हैं, तो जस्ट परचेज इट, इट वुड मेक यू कन्वीनियंट, मेक दैट पर्टिकुलर प्रोसेस कन्वीनियंट फॉर यू, सो दैट इज कन्वीनियंस। जैसे आपने देखा होगा कॉफी फ्रॉदर, यूजुअली आपको कॉफी बनाने के लिए उसको बहुत देर तक मैश करना पड़ता है और रोटेट करना पड़ता है, तो अब आप उसको फ्रॉद कर सकते हो इलेक्ट्रिक, उसके साथ इलेक्ट्रिक फ्रॉदर आता है। न्यू एड ऑफ लेज, मैंने देखी नहीं है, कौन सी एड की बात कर रहे हैं आप? यू कैन जस्ट पेस्ट द लिंक हेयर और फिर हम उस लिंक पे देख के वी कैन डिस्कस कि उसमें रैशनल अपील है या फिर इमोशनल अपील है। राहुल उपाध्याय, which ad are you talking about? Just paste the link. इकोनॉमी एंड फेवरेबल प्राइस में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं, दोनों सेम है। पॉपुलैरिटी में आप ये बताते हैं कि दिस प्रोडक्ट इज पॉपुलर, इतने लोग इसको यूज कर रहे हैं। जैसे आपने कुछ एडवर्टीजमेंट्स में देखा होगा कि 90% ऑफ द पीपल यूज जॉनसन्स बेबी प्रोडक्ट्स, या फिर 90% ऑफ द पीपल से दिस और दैट, वो पॉपुलैरिटी बता रहा है उस प्रोडक्ट की, वो एक रेशनल अपील है। फीचर अपील, जिसमें बहुत सारे फीचर्स बताए जाएं प्रोडक्ट के कि ये काम कर सकता है। और कंपेटिटिव एडवांटेज में जब मैं ये कहूँ कि कोलगेट पेप्सोडेंट से बेटर है, किसी से कंपेयर करके बताऊं। कभी कभी हम नाम नहीं लेते हैं दूसरे प्रोडक्ट का, लेकिन हम कहते हैं कि ये इससे बेटर है। मैंने कल ही कोई एडवर्टीजमेंट देखी थी फॉर्च्यून बेसन की, उन्होंने कंपैरिजन कर रखा था कि इट इज बेटर देन अदर्स, दैट इज कंपेटिटिव एडवांटेज। हेल्थ में जब मैं ये कहती हूँ कि दिस प्रोडक्ट एड्स टू योर हेल्थ, वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, आपको ये यूज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपने शुगर फ्री की एड देखी होगी कि पीपल शुड यूज शुगर फ्री इंस्टेड ऑफ शुगर इफ दे वांट टू मेंटेन देयर वेट, दैट इज हेल्थ। हाँ, बेनिफिट और फीचर बताते वो रैशनल अपील होती है। दीप्ति, यू कैन से। ओके, मेरे पास एक लिंक आया है यूट्यूब का। अरे everyone,
अच्छा, ये तो आपने एडवर्टाइजमेंट का दोनों का, हाँ ये आप अपनी okay, we'll now watch some of the videos. I'll always be with you and love you forever. My mama used to tell me every time she smiled. Much I appreciate your love. Not a day goes by that I do not think of you. I know you are in my heart, my thoughts and in my life. Even though you threw away your love, we will forever stay. And I know you are shining down on me from heaven. लास्ट एडवर्टीजमेंट में हमने देखा एलजी वॉशिंग मशीन की ही एडवर्टीजमेंट है दोनों। एक में इमोशनल अपील यूज की गई है, दैट हाउ दैट गर्ल इज अटैच्ड टू हर सॉफ्ट टॉय and then that is being washed in the LG washing machine and it keeps everything intact. The next advertisement talks about its features, how it removes the dirt, how it removes 99% of the allergens, etc. So in both the advertisements we can see the emotional and the rational appeal. हेलो रुतिका मैम। हाँ जी। हेलो मैम, ये तो आपका ये यूट्यूब हटाइए। हाँ हाँ। और दूसरा आपका जो है ना वीडियो नहीं आ रहा। हाँ
वीडियो तो ठीक है, लेकिन मैं YouTube पे और वीडियोस दिखा रही हूँ अभी। हाँ ठीक है मैडम, अपना वो भी लगाइए आप हाँ जी, वो अपना। कैमरा मैं अभी ऑन नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो फिर नेट में प्रॉब्लम आती है। चलिए ठीक है। हाँ जी। अब मैं आपको कुछ और एडवर्टीजमेंट्स दिखा रही हूँ जिसमें आपने अगेन रैशनल अपील पहचाननी है कि किस तरीके की रैशनल अपील यूज होगी है। जैसे मैं आपको एक ट्रॉपिकाना की दिखाती हूँ। What do you get from a glass of Tropicana Pure Premium? Oranges picked at their perfect sweetness. Thousands of hours of sunshine. All our passion for fruit and a healthy dose of vitamin C. There's so much more than you think in a glass of Tropicana. And now, get even more choice with new Tropicana Essentials Fruit and Veg. Part of the Tropicana Essentials range to help keep you in good health. Can you tell me which appeal is being used here? आप क्वेश्चन एंड आंसर बॉक्स में लिखेंगे ट्रॉपिकाना और उसके आगे लिखेंगे कि कौन सी रेशनल अपील यूज की गई है। जैसे जैसे मैं आपको वीडियोस दिखाती रहूंगी, आप उस वीडियो यानी उस प्रोडक्ट का नाम और उसके आगे लिखेंगे कि कौन सी रेशनल अपील यूज हुई है, और मैं फिर एट द एंड स्कैन करूंगी आपके सबके आंसर्स। ट्रॉपिकाना की मैंने ऐड दिखा दी आपको। कोई भी ब्रांड हनी नहीं बनाता, बल्कि मधुमक्खी फूलों के पराग से मधु का चयन करके हनी बनाता। ऐसा ही 100% प्योर नेचुरल पतंजलि हनी जो 100 से अधिक पैरामीटर्स पर खरा है, इसे हम आप तक पहुंचाकर आपकी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। आपको लिखना है पतंजलि हनी और उसके आगे लिखना है कि कौन सी रेशनल अपील यूज हुई है। Network ready? It is going to start. 3, 2. Lucknow station. Lucknow station. Got it. That was fast. Video call. Hi Teju. We'll call you back, okay? Bingo. MBA colleges. Top 10. ऊपर ले ऊपर। कैसा नेटवर्क है? ये नेटवर्क ले यार, वो छोड़। ओके। Photo album upload. सेल्फी सेल्फी। Got it. Honey Singh. Got it. Coke Studio. Got it. Full movie download. Wait. Happening. Got it. It's too fast. कुछ गड़बड़ है।
गड़बड़ नहीं, 4G है। एयरटेल 4G चैलेंज। इससे फास्टर नेटवर्क मिले तो लाइफ टाइम मोबाइल बिल्स फ्री। क्या बात है। आपको एयरटेल के बारे में लिखना है कि कौन सी अपील यूज हुई है। We bend for celebrations. We bend for traditions. We bend for devotion. But never bend for our convenience. Higher BMR reduces bending by 90% with the more frequently used fridge above. अब झुकना मत. Higher inspired living. आज हम ढूंढ रहे हैं सबसे टेस्टी पकौड़े। चलो ढूंढते टेस्टी पकौड़े। बस पेट में भर गया है और नहीं खाया जाएगा। मिलेंगे टेस्टी पकौड़े। नहीं अरे लेट हो गए भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो। वो मिल गए। क्या प्याज के पकौड़े भी इतने अच्छे बनते हैं? आपके हाथों में तो जादू है। मेरे बेसन का जादू है। बेसन? फॉर्च्यून बेसन भी 100% चना दाल से बना है। इसीलिए ये बेस्ट पकौड़ा है। कैमरा ऑन करना तो भूल ही गए, फिर से बनाना पड़ेगा। अपना पुराना बेसन छोड़िए, ले आइए फॉर्च्यून बेसन। 100% चना दाल, 100% टेस्ट। परदेश में मैं मिस करती थी हम इंडियंस की खास स्माइल, बहादुर की शलोम मेम शॉप स्माइल, कपल्स की रोमांटिक स्माइल, सास बहू की एक्टिंग वाली स्माइल, बच्चों की खिली खिली सी स्माइल। आज से इन स्माइल्स को हेल्दी रखूंगी मैं, चीफ स्माइल ऑफिसर, और मेरा साथ देगा ओरल बी, वर्ल्ड्स नंबर 1 डेंटिस्ट रिकमेंडेड टूथब्रश ब्रांड। आइए करें करोड़ों स्माइल्स की सुरक्षा एक एक करके। मुझसे इस नंबर पे बात करें और भाग लें स्माइल इंडिया मूवमेंट में। Okay. You created a business. Let's start the discussion. I showed you many videos. Now you have to write which particular appeal is being used. Let me see. Patanjali Health. Okay.
पतंजलि में हेल्थ भी आएगा और फीचर्स भी आएंगे। नेक्स्ट है टॉपिक आना हेल्थ, ठीक है। इसके बाद एयरटेल फीचर्स। ओके, फीचर्स तो बता ही रहे हैं, साथ में कंपेयर भी कर रहे हैं दूसरे नेटवर्क से, दैट मीन्स कंपेटिटिव एडवांटेज अपील भी है। किसी ने एयरटेल में इमोशनल लिखा है, इमोशनल नहीं होगा। ड्यूरेबिलिटी नहीं होगा, उसमें उन्होंने ड्यूरेबिलिटी की कोई बात नहीं कही है। ड्यूरेबिलिटी है कि कोई भी प्रोडक्ट कितने साल चल रहा है, जैसे आपने पेंट्स की एड देखी है कि सालों साल चलता रहे, वो ड्यूरेबिलिटी है। Higher fridge convenience, yes. Fortune Basin competitive advantage. ओरल बी पॉपुलैरिटी, यस उन्होंने लास्ट में लिखा था, अगर आपने ध्यान से देखा हो कि this much percentage of the dentist recommend this particular product. Okay, so that's all we had to discuss. Now you have to write these examples while quoting the rational and emotional appeal. जब आपसे पूछा जाएगा कि अपील्स कितनी तरीके की होती हैं, तो सिर्फ आपको उनके डेफिनेशन या टाइप्स नहीं लिखने हैं, ये सारे एग्जाम्पल भी लिखने हैं अपने एग्जाम में, और इसीलिए मैंने आपको ये एडवर्टीजमेंट्स दिखाई हैं। विदाउट एग्जाम्पल आपका आंसर अधूरा है। आपको एग्जाम्पल हर एक आंसर में लिखना है। एडवर्टीजमेंट, पर्सनल सेलिंग एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जो आप यूजुअली देखते हैं, जो आपके डे टू डे लाइफ में आप ऑब्जर्व करते हैं, एंड दैट इज व्हाई यू हैव टू सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जाम्पल। ओके, या अभी मैंने स्क्रीन शेयर नहीं किया, लेट्स गेट बैक टू आवर पीपीटी। नहीं, अभी न्यूज नहीं हो सकता है ओरल बी में, क्योंकि उन्होंने न्यूज की कोई ऐसी बात की नहीं है। न्यूज में अगर वो कहते हैं कि इतने न्यूज में या हमारे पीएम ने ये डिक्लेयर किया है, या फिर हिंदुस्तान टाइम्स ने ये डिक्लेयर किया है, ये रिसर्च किया है, या फिर किसी रिसर्च के अकॉर्डिंग बताते हैं, तो वो न्यूज में आता है। जैसे आपने कुछ एडवर्टीजमेंट में देखा होगा, वो कहते हैं कि इस पे एक रिसर्च किया गया और ये पाया गया कि इतने लोग ऐसा कहते हैं और इतने लोग ऐसा कहते हैं, या फिर ये इतना परसेंटेज आपको फायदा करता है, वो न्यूज होगा जिसमें कोई रिसर्च किया गया हो। चलिए अब हम पीपीटी पर चलते हैं। Now we'll discuss what is advertising copy. In simple words, the body of advertising is the advertising copy. अगर प्रिंट में है तो प्रिंट में जो कंटेंट लिखा होगा उसको हम एडवर्टाइजिंग कॉपी कहेंगे। अगर टेलीविजन में कोई हम एडवर्टीजमेंट देख रहे हैं
तो उसका जो कंटेंट दिखाया जा रहा है उसको एडवर्टाइजिंग कॉपी कहेंगे, इंक्लूडिंग द ऑडियो एंड द वीडियो। अगर कोई फेसबुक की एडवर्टीजमेंट है, उसमें कोई ब्लॉग, कोई पोस्ट लिखा गया है, तो उसको हम एडवर्टाइजिंग कॉपी कहेंगे। यानी द कंटेंट ऑफ द एडवर्टाइजिंग इज नोन एज एडवर्टाइजिंग कॉपी। Now let's come to the formal definitions of advertising copy. The effectiveness of advertisement lies in how well the advertising message is developed. यानी कोई भी एडवर्टीजमेंट कब इफेक्टिव होती है या किन बेसिस पे इफेक्टिव होती है कि कैसा उसका मैसेज बनाया गया है। कोई भी एडवर्टीजमेंट आपको किस तरीके से मैसेज डिलीवर कर रही है या कम्युनिकेट कर रही है, सारी इफेक्टिवनेस उसी की होती है। एडवर्टाइजिंग कॉपी may be defined as all the written or spoken matter, यानी जो भी लिखा गया है या बोला गया है वो सब कुछ इंक्लूड होता है उसमें, इंक्लूडिंग द फिगर्स एटसेट्रा, which are made to convey the desired message। यानी वो क्यों बनाए जाते हैं, ताकि जो आपके मन में है, जो आप कन्वे करना चाहते हैं अपने कस्टमर को, वो कैसे प्रेजेंट किया जाए। It includes headings, subheadings, pictures, slogans and body etc. यानी इसमें हेडिंग्स भी आती हैं। अभी हम अगर प्रिंट की बात करें तो उसमें कुछ हेडिंग्स होंगी, कुछ सब हेडिंग्स होंगी, कुछ पिक्चर्स वगैरह। अगर किसी न्यूज़पेपर की एडवर्टीजमेंट की बात करूँ, स्लोगन्स वगैरह लिखे होंगे। या फिर अगर मैं टेलीविजन या रेडियो की बात करूं तो उसमें भी आपको पहले सब कुछ बताया जाएगा, फिर उसके बारे में डिटेल्ड व्यू दिया जाएगा, आपको कुछ विजुअल्स दिखाए जाएंगे, आपको कोई वीडियो दिखाई जाएगी, लास्ट में कोई स्लोगन बोला जाएगा। तो वो सब कुछ एडवर्टाइजिंग कॉपी का ही पार्ट होता है। इन द वर्ड्स ऑफ स्क्यू एंड स्मिथ, the advertising copy includes all the written or spoken elements of the message in advertisement to target the customers. That means जो भी लिखा हुआ और बोली हुई चीज है वो जब हम टारगेट कस्टमर्स तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जिसके जरिए पहुंचाते हैं, उसको एडवर्टाइजमेंट कॉपी या एडवर्टाइजिंग कॉपी कहते हैं। मैसेज इज द हार्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग कैंपेन। ऑफ कोर्स जो मेन क्रक्स है एडवर्टीजमेंट का वो उसका मैसेज है। Therefore the message that has to be conveyed in an advertisement copy should be emotional। यानी जब भी कोई हम मैसेज बनाते हैं वो इमोशनल और रेशनल अपील दोनों को ध्यान में रख के बनाना चाहिए, क्योंकि हर इंसान का अपना अलग नेचर होता है। हो सकता है आप इमोशनल अपील से अट्रैक्ट होते हो, मैं रेशनल अपील से अट्रैक्ट होती हूँ। तो दोनों तरीके की ऑडियंस को कैप्चर करने के लिए एक एडवर्टीजमेंट कॉपी में इमोशनल अपील भी होनी चाहिए, वो डिस्क्रिप्टिव भी होनी चाहिए, यानी प्रोडक्ट के बारे में डिस्क्राइब भी करें। वो नैरेटिव भी हो सकती है, यानी कोई स्टोरी बना के आप बता रहे हैं, स्टोरी के जरिए बता रहे हैं, वो हो सकता है, या फैक्चुअल हो सकता है, यानी कुछ फैक्ट्स आप बता रहे हैं। इट इज कलेक्टिव एफर्ट्स ऑफ कॉपीराइटर्स, आर्टिस्ट्स एंड लेआउट मैन। यानी अभी यहाँ पे एडवर्टाइजिंग कॉपी को बनाने में किन लोगों की सहायता ली जाती है। कुछ कॉपीराइटर्स होते हैं उसमें, जैसे कुछ एडवर्टीजमेंट्स के अपने अलग गाने होते हैं, कोई अपना अलग म्यूजिक होता है, तो उसका कॉपीराइट लिया जाता है कि कोई और यूज ना करे। जैसे एयरटेल की ट्यून एयरटेल की एडवर्टीजमेंट में आती थी, तो उसका उनका कॉपीराइट था, वो कोई और यूज नहीं कर सकता था। आर्टिस्ट होते हैं, कभी कभी सेलिब्रिटीज होते हैं या नॉर्मल आर्टिस्ट होते हैं जो एडवर्टीजमेंट को डिस्प्ले करने में हेल्प कर रहे हैं। एंड लेआउट मैन होते हैं, यानी जो पूरा मैनेज करते हैं बिहाइंड द कैमरास। तो ये है एडवर्टाइजिंग कॉपी। अब हम पढ़ेंगे कि एक अच्छी एडवर्टीजमेंट कॉपी में क्या क्या होना चाहिए।
It is very difficult to state as to what constitutes a good advertising copy. यानी एक कोई फॉर्मल और यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है एडवर्टाइजिंग कॉपी की कि चलो ये बन गई तो ये बेस्ट एडवर्टाइजिंग कॉपी है या ऐसी ही होनी चाहिए, क्योंकि आपकी नीड्स अलग हो सकती हैं अकॉर्डिंग टू योर कस्टमर्स। सपोज आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसको खरीदने के पीछे कोई रेशनल नहीं है। कभी कभी कुछ लग्जूरियस या शौकिया प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी उनको आप नहीं खरीदोगे तो भी काम चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल पार्कर पेन है जैसे, अब पेन वो काम तो सिर्फ लिखने के आएगा, तो अगर हम रेशनली सोचे या पार्कर तो चलो फिर भी अब थोड़ा सस्ता है, अगर मैं क्रॉस के पेन्स की बात करूं रेंजिंग फ्रॉम 2000 to 5000 10,000 रुपीज, तो उसके पीछे कोई रेशनैलिटी नहीं है कि आप एक पेन 2000 का 3000 का पेन खरीदेंगे। तो अब जिस चीज में रेशनैलिटी इन्वॉल्व नहीं है उसकी एडवर्टीजमेंट कॉपी में रेशनैलिटी डालकर मैं क्या करूँगी, तो उसके लिए इमोशनल अपील काम करेगी। जिस प्रोडक्ट के फीचर्स अच्छे हों और आप लोगों को कन्विंस कर सकें कि इसके फीचर अच्छे हैं इसीलिए आपको खरीदना है, उसमें आप रेशनल अपील यूज करेंगे। तो इसीलिए कोई यूनिवर्सल गुड एडवर्टाइजिंग कॉपी नहीं होती। इट डिपेंड्स अपॉन योर सिचुएशन, योर टाइप ऑफ द प्रोडक्ट एंड द टाइप ऑफ द ऑडियंस कि आप कैसे एडवर्टीजमेंट कॉपी बनाते हैं। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड एडवर्टीजमेंट कॉपी आर, फिर भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं कि इस तरीके की आपकी एडवर्टीजमेंट कॉपी होनी चाहिए। सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है अटेंशन वैल्यू। An advertising copy must attract the attention of prospective customers. Otherwise, all the efforts and expenses on the advertisement will go waste. अगर हम अब जो हमने 2-3 दिन पहले डिस्कस किया था, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर एंड एक्शन, तो किसी भी एडवर्टीजमेंट का मेन गोल, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट गोल क्या होता है? अटेंशन क्रिएट करना। तो जो एडवर्टीजमेंट कॉपी है, चाहे वो ऑडियो हो, वीडियो हो या प्रिंट कॉपी हो, it must have that power to grab the attention of the people, okay, to get attended by people, because अगर लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पा रही है, अटेंशन नहीं ले पा रही है आपकी एडवर्टीजमेंट कॉपी, तो कोई फायदा नहीं है उसका। इसीलिए फर्स्टली यू हैव टू मेक इट श्योर दैट दिस copy grabs the attention of the audience. How the attention can be grabbed? It can be grabbed using the illustrations, colors, novelties and display. यानी उसको अट्रैक्ट करने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसमें कुछ illustrations यूज कर सकते हैं हम। illustrations मतलब कुछ अलग अलग ग्राफिक्स जिससे लोग अट्रैक्ट होते हैं। अलग कलर्स यूज कर सकते हैं। बहुत ब्लैक एंड वाइट बनाओगे तो लोग इतने अट्रैक्ट नहीं होंगे, उसको कलरफुल बनाओ। नॉवेल्टीज, कुछ नया उसमें दो। जैसे आपने देखा होगा कई बार पहले होता था, अब तो न्यूज़पेपर इतने क्रिएटिव नहीं रहे, लेकिन पहले न्यूज़पेपर में जैसे कभी मदर्स डे होता था तो उस पर एक ग्रीटिंग कार्ड बनकर आता था, या फिर कुछ म्यूजिकल कुछ आता था, या इस तरीके के ओकेजन्स पे अलग अलग तरीके के नई नई चीज़ें आती थी न्यूज़पेपर में अटैच होकर। तो वो नॉवेल्टी था, क्योंकि कुछ नया दो। या फिर डिस्प्ले, इस तरीके से डिस्प्ले करो ताकि लोग अट्रैक्ट हो सकें। तो अटेंशन क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है आपकी एडवर्टाइजिंग कॉपी का। नेक्स्ट है इंटरेस्ट वैल्यू। ओनली गेनिंग अटेंशन ऑफ द प्रोस्पेक्ट्स
will not induce them to buy the product. अब हम दूसरे स्टेप पर आ गए कि सिर्फ अटेंशन लेना लोगों की is not going to be enough. सपोज मैंने कोई एडवर्टीजमेंट देखी क्योंकि बहुत रंगीन थी, वो बहुत ज़्यादा कलरफुल थी, लेकिन मैंने देखा इसमें तो कुछ ज़्यादा खास लिखा नहीं है, मेरी अटेंशन जाकर भी वापस आ गई। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बार अटेंशन लेने के बाद अपने कस्टमर्स की, you have to indulge them so that they can become interested in your product. Okay, this is the second main thing. Then we have the third requirement. It is suggestive value. The third essential of a good advertisement copy is its suggestive value. For this purpose, the advertising copy must include the merits of the product. For example, problem Chalhat used in Dabur red toothpaste. For this purpose, the slogans, the picture, the phrases and the suggestions can be used. यानी अब नेक्स्ट स्टेप में जब आप इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हो तो आप कुछ सजेशन दो लोगों को। यानी सजेशन का मतलब है कि क्यों वो प्रोडक्ट खरीदना चाहिए। अब क्यों के पीछे आप कैसे कुछ मेरिट्स बताएंगे तभी वो खरीदेंगे, उसके कुछ फायदे हैं वो बताएंगे, या फिर कुछ स्लोगन इस तरीके का बनाएंगे, जैसे कोलगेट का आपने स्लोगन देखा होगा कि मेरे टीथ स्ट्रॉन्ग तो मैं स्ट्रॉन्ग, समथिंग लाइक दैट। तो यानी वो वहाँ पर सजेस्टिव वैल्यू है उसकी, कि वो बता रहा है कि इसकी वजह से आपके टीथ स्ट्रॉन्ग होंगे, और अगर आपके टीथ स्ट्रॉन्ग होंगे तो आप खुद भी स्ट्रॉन्ग होंगे क्योंकि आपको प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। इसीलिए आपकी एडवर्टीजमेंट कॉपी में एक सजेस्टिव वैल्यू होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है रिसेप्शन वैल्यू। रिसेप्शन वैल्यू, all three values stated above, attention, interest and suggestive, cannot give desired result of advertisement if people forget it. Therefore, the advertising copy layout should be in such a manner that it makes permanent impression in the mind of the public. यानी एक बार किसी का अटेंशन लेना अलग बात है, लेकिन उसके माइंड पे पूरा काबू कर लेना, आप परमानेंट इम्प्रेशन बना पाए, वो एक अलग चीज है। तो आपकी एडवर्टीजमेंट कॉपी इस तरीके से डिजाइन होनी चाहिए कि वो सिर्फ एक बार इंफॉर्मेशन देकर रह ना जाए, बल्कि वो पब्लिक के माइंड में घर कर जाए, ताकि उनका एक परमानेंट इम्प्रेशन बन पाए और वो कभी भी रिकॉल कर सके। दिस इज रिसेप्शन वैल्यू। नेक्स्ट है सेंटिमेंटल वैल्यू। Sales of certain product heavily depend upon the sentiments of the buyers. It is especially true in the case of food products. People patronize the place where they find good and clean food with satisfactory service. For example, McDonald's. अब किसी भी प्रोडक्ट की सेल जो है वो सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है बायर्स के सेंटिमेंट्स पे, यानी बायर्स उसके बारे में क्या सोचते हैं। तो आपकी एडवर्टीजमेंट कॉपी कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट्स के बारे में बताए ताकि लोग उसके साथ एक सेंटिमेंट क्रिएट कर पाए। यानी कभी कभी हमें लगता है कि एक प्रोडक्ट हमने कहीं यूज़ किया, वो हमें अच्छा लगा, तो वो आगे चलकर भी हम हमेशा उन्हीं के पास जाते हैं, यानी एक तरीके की लॉयल्टी क्रिएट कर पाए। तो आपकी एडवर्टीजमेंट में एक सेंटिमेंट वैल्यू भी होनी चाहिए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसी प्रोडक्ट को खरीदने की कोशिश करें, क्योंकि उनको लगता है कि दे प्रोवाइड अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट।
फॉर एग्जाम्पल पतंजलि ने एक सेंटिमेंट वैल्यू क्रिएट की हुई है। वो स्वदेशी, they again and again talk about the स्वदेशी products so that people can get connected to them sentimentally. Okay, उनका sentimental कनेक्शन हो जाता है उन प्रोडक्ट्स से, और हम फिर कोशिश करते हैं, जो लोग ज़्यादा ही स्वदेशी प्रोडक्ट्स में बिलीव करते हैं, दे यूजुअली गो फॉर द पतंजलि प्रोडक्ट्स। ओके, नेक्स्ट है एजुकेटिव एंड क्रिएटिव वैल्यू। Another important essential of a good advertising copy is that it must be educative and creative. Educative and creative value of an advertising copy is particularly important in case of products which are meant for replacing the existing products. For example, DVD players to replace the CD players. Such copy must be designed in such a way to provide the information regarding extra benefits which the customer gets by using these products. Educative और creative value का मतलब है कि आप किसी नई तरीके के प्रोडक्ट के बारे में लोगों को अवेयर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक व्हीकल, अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल की आप एडवर्टीजमेंट कॉपी बना रहे हैं तो आप उसमें दिखाएंगे कि कैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल कैन हेल्प यू टू रिड्यूस द पोल्यूशन, हाउ इट इज एनवायरमेंटल फ्रेंडली। तो सिर्फ अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट ना करके आपको उसके बारे में पूरी नॉलेज देनी है कि इस तरीके के प्रोडक्ट को यूज करने के क्या फायदे हैं, ताकि वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को रिप्लेस कर पाए। क्रिएटिव वैल्यू, जिसमें आप थोड़ी क्रिएटिविटी भी दिखाते हैं कि जैसे आपने देखा होगा एडवर्टीजमेंट्स में कुछ फनी चीज़ दिखा दी, या फिर कुछ बहुत फियर का कुछ दिखा दिया, या बेसिकली इमोशनली या रेशनली भी कुछ क्रिएटिविटी दिखाई। आपने देखा होगा ना, अलग अलग तरीके की एडवर्टीजमेंट्स आती हैं जो बहुत क्रिएटिव होती हैं। जैसे गेमिफिकेशन है, अगर आप फेसबुक पे कोई एडवर्टीजमेंट देख रहे हैं तो उसमें अगर आप कोई गेम खेलते हैं, आप किसी कॉन्टेस्ट में पार्ट लेते हैं, तो आप ज़्यादा इंडल्ज हो जाते हैं उसमें। तो वो क्रिएटिविटी है कि कैसे लोगों को ज़्यादा एंगेज किया जा सके। या मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था न्यूज़पेपर का, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट पहले आती थी तो उसके साथ वो कोई सैंपल भेज देते थे, तो वो भी एक क्रिएटिविटी का पार्ट था। So this must be there in your advertising copy. Last है, we can talk about the other characteristics. It should contain language and words which target audience can easily understand. ये तो बहुत must है कि जो target audience है, suppose मैंने English में बना दिया ad, but मेरी target audience सारी हिंदी वाली है, उनको English नहीं आती है, तो फिर कोई फायदा नहीं है, वो समझ ही नहीं पाएंगे। या फिर बी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट, बहुत ज़्यादा कंटेंट अगर आप लिख देंगे तो लोग ज़्यादा पढ़ ही नहीं पाएंगे, इसलिए पॉइंटर फॉर्म में लिखो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझ पाए। बी क्लीन, अनएम्बिगुअस एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, यानी बहुत साफ सुथरा होना चाहिए एडवर्टीजमेंट, अनएम्बिगुअस होना चाहिए यानी इजीली अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए यानी किसी और की नीड ना पड़े उसे समझाने की, आपको खुद ही समझ आ जाए। कई बार आप ऐड देखते हैं जो आपको समझ नहीं आती, फिर आप कैसे उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो एडवर्टीजमेंट्स ऐसी होनी चाहिए जो समझ आ जाए सबको, ओके, और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एडवर्टाइजिंग कॉपी के। और अब मैं आपकी स्क्रीन पर आ रही हूँ जस्ट टू हैव क्वेश्चन एंड आंसर्स।
रिसेप्शन वैल्यू का मतलब है कि पीपल शुड बी एबल टू रिसीव इट क्लियरली, ताकि वो उसके माइंड में रह सके एडवर्टीजमेंट। मैंने आज कोई एडवर्टीजमेंट देखी, मुझे अच्छी लगी, बट मैं उसके बारे में भूल गई, तो कोई फायदा नहीं है, मुझे याद रहनी चाहिए वो। नहीं, रेशनल अपील और इमोशनल सेम कैसे हो सकती हैं? सेकेंड लास्ट पॉइंट, एजुकेटिव एंड क्रिएटिव वैल्यू, यानी आपकी एडवर्टीजमेंट कॉपी लोगों को एजुकेट करनी चाहिए उस टाइप ऑफ द प्रोडक्ट के लिए कि क्यों ये प्रोडक्ट जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, हनी के बारे में एक तो आप बताएं कि ये मेरा वाला हनी अच्छा है, एक ये कहें कि हनी वैसे क्यों अच्छा है, क्योंकि शुगर को रिप्लेस कर लेता है, बॉडी के लिए भी अच्छा होता है, इजीली डाइजेस्टेबल होता है। तो यानी जब आप लोगों को एजुकेट कर रहे हैं उस टाइप ऑफ द प्रोडक्ट के लिए, ये ना कह के कि आपको जंडू हनी लेना है या डाबर हनी लेना है या पतंजलि, मैं यहाँ किसी ब्रांड की बात ना करके जब लोगों को एजुकेशन दे रही हूँ उस टाइप ऑफ द प्रोडक्ट के बारे में कि इसके क्या फायदे हैं, वो है एजुकेटिव वैल्यू। यस, पतंजलि कैन कम अंडर द न्यूज, जैसे उन्होंने दिखाया कि वो इतने सारे टेस्ट पास कर चुका है। यस, यू कैन इंक्लूड। इंटरेस्ट वैल्यू, यानी आपकी एडवर्टीजमेंट कॉपी ऐसी होनी चाहिए जो लोगों का इंटरेस्ट क्रिएट कर पाए। चलिए अब हम दोबारा पीपीटी पे चलते हैं। अब हम कुछ टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग कॉपी पढ़ेंगे। First is scientific copy. Scientific copy is of technical nature and it provides details regarding the producer and the product. This type of copy is generally used by engineering, drug and pharmaceutical firms to inform the ordinary people in general and professional persons in particular about the merits and the value of the product so that they may be stimulated to buy it. साइंटिफिक कॉपी का मतलब है कि किसी भी प्रोडक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल्स देना, जैसे उसकी इंग्रेडिएंट्स बताना, उसकी सेफ्टी बताना, उसके साइड इफ़ेक्ट्स बताना, उसके बारे में उसकी वैल्यू बताना, उसका प्राइस बताना। तो जब आप बहुत टेक्निकली किसी चीज़ के बारे में बताते हैं, सारे इंग्रेडिएंट्स बताते हैं या उसकी कॉम्पोजिशन बताते हैं, इंग्रेडिएंट्स इज नॉट द राइट वर्ड हियर, लेकिन जैसे किसी दवाई के सारे कॉम्पोजिशन बताते हैं कि इसमें ये है और ये फ़ायदा करता है, तो उसको हम साइंटिफिक कॉपी कहते हैं।
कभी कभी हमने देखा है कि इस तरीके की कॉपी ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी यूज की जाती है, जैसे हेयर कलर की एक ऐड आती है जिसमें वो बताते हैं कि ये अमोनिया फ्री है, यानी वो आपके बालों को नुकसान नहीं पहुंचाता, या इसमें ये केमिकल नहीं है, या ये केमिकल है जो आपको फायदा देता है, जिसमें केराटिन है। आपने शैम्पू में देखा होगा, वो बताते हैं इसमें केराटिन है। तो यानी एक साइंटिफिक कॉपी है जिसमें आप उसकी कॉम्पोजिशन के बारे में बता रहे हैं और उसके फायदे बता रहे हैं। नेक्स्ट है डिस्क्रिप्टिव कॉपी। This copy is non-technical in nature and is prepared in such a manner that the layman can understand it. अब मैंने फर्स्ट कॉपी में सपोज हेयर कलर की कॉपी है, हेयर कलर की एडवर्टीजमेंट है, और मैं वहां कह रही हूँ कि ये अमोनिया फ्री है, बस मैंने ये कहा। तो कुछ लोगों को पता होगा कि अमोनिया फ्री होने का मतलब क्या होता है, या पैराबेन फ्री है, पैराबेन। अब कुछ लोगों को पता होगा कि इसका मतलब क्या है, वो अच्छा नहीं होता सेहत के लिए, इसीलिए है, और कुछ लोगों को नहीं पता होगा। तो साइंटिफिक कॉपी में कभी कभी चांसेस होते हैं कि सारे लोगों को समझ ना आए, लेकिन डिस्क्रिप्टिव कॉपी में आप इस तरीके से कॉपी बनाते हैं या एडवर्टीजमेंट बनाते हैं कि एक लेमैन जिसको ज़्यादा कोई नॉलेज नहीं है वो भी इजीली समझ पाता है। जैसे कि अगर मैं सिर्फ ये बोल दूं कि हार्मफुल केमिकल नहीं है इसमें, अब ये तो हर कोई समझ पाएगा, सिंपल लैंग्वेज है कि इसमें हार्मफुल केमिकल नहीं है। लेकिन अगर मैं केमिकल का नाम लेके कहूँगी ये नहीं है वो नहीं है, तो लोग समझ नहीं पाएंगे। तो डिस्क्रिप्टिव कॉपी होती है जिसको एक लेमैन टर्म्स में लिखा जाता है और इजी लैंग्वेज में बनाया जाता है। नेक्स्ट है टॉपिकल कॉपी। टॉपिकल कॉपी इज दैट एडवर्टीजमेंट कॉपी which is intended to appeal the target prospects by establishing a connection between the product and the particular recent happening. This type of copy commands good deal of interest because of the sensational event which are fresh in the minds of the prospects. For example, advertising copy of Adidas during the sports. टॉपिकल कॉपी का मतलब है जब आप किसी इवेंट के साथ जोड़ देते हैं अपनी एडवर्टीजमेंट को, तो वो टॉपिकल कॉपी कहलाती है। यानी किसी इवेंट के दौरान ही आप एडवर्टीजमेंट उसके लिए दिखा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा वर्ल्ड कप के दौरान लेज की एड आती थी। अब उन्होंने उसको कैसे जोड़ा कि आप वर्ल्ड कप देखते देखते चिप्स खाइए और अलग अलग देशों के लोग खा रहे हैं, या फिर वो इस तरीके से दिखा रहे थे कि जिस दिन जिसका मैच होता था वही लोग उसी की टी शर्ट पहन के वो एडवर्टीजमेंट दिखाई गई थी। वो एक टॉपिकल कॉपी होती है। दूसरा एग्जाम्पल दे रखा है कि जैसे अगर एडिडास की एड आ जाए किसी स्पोर्ट्स के दौरान, कोई मैच चल रहा है उसके बीच में एडिडास की एडवर्टीजमेंट आ गई ताकि लोगों को याद दिलाया जाए। टॉपिकल कॉपी। नेक्स्ट है नैरेटिव कॉपी। अंडर दिस टाइप ऑफ कॉपी appeals are made to prospects with the help of fictitious stories which narrates the benefits of purchasing the product। यानी यहाँ पे fictitious story दिखा रखी है। fictitious वर्ड आया फिक्शन से। फिक्शन यानी नॉन रियल। कोई भी अपनी तरफ से स्टोरी बनाकर कभी कभी एडवर्टीजमेंट्स दिखाई जाती हैं ताकि वो स्टोरी कन्वे कर सके। कभी कभी ह्यूमरस होती है, वो हंसी मजाक की स्टोरी होती है, कभी कभी इमोशनल मैसेज होता है उसमें, तो उसको हम नैरेटिव कॉपी कहते हैं जिसमें स्टोरी बनाई जाए।
जैसे कि आपने एडवर्टीजमेंट्स में देखा होगा, एक एडवर्टीजमेंट थी आई थिंक गूगल की, जिसमें बहुत सालों के बिछड़े हुए दोस्त एक दूसरे को सर्च करने की कोशिश करते हैं, वो एक स्टोरी क्रिएट की गई थी। या फिर सैमसंग टेलीविजन की एक ऐड देखी होगी आपने कि कुछ ब्लाइंड लोग होते हैं, वो टेलीविजन मंगवाते हैं, लद्दाख का एरिया होता है या कहाँ का, ताकि वो सुन सकें उसे। तो उसमें भी एक स्टोरी क्रिएट की गई होती है। तो जहाँ पर स्टोरी क्रिएट की जाए वो नैरेटिव कॉपी कहलाती है। नेक्स्ट है पर्सनालिटी कॉपी। This type of advertisement copy attempts to encash the opinion of an important personality about the product. यानी जब कोई सेलिब्रिटी या कोई स्पेशल पर्सनालिटी किसी प्रोडक्ट के बारे में बताता है, उसको हम पर्सनालिटी कॉपी कहते हैं। एग्जाम्पल दे रखा है सलमान खान एडवर्टाइजिंग द रिवाइटल कैप्सूल्स, वो सबने आपने देखी ही होगी यार। नेक्स्ट है क्वेश्चनिंग कॉपी। Questioning copy includes a number of questions expected to be answered by the prospects. The answer of these questions lies in the use of the product so advertised. For example, advertisement of Godrej locks. यानी जब एडवर्टीजमेंट में उसके फायदे ना बताकर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएं कि क्या आप एक प्रोडक्ट में क्या चाहते हैं, इस तरीके के प्रोडक्ट में आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, तो उसको हम क्वेश्चनिंग कॉपी कहते हैं, जिसमें आपको बताकर ना यानी कोई चीज के प्रोडक्ट के मेरिट्स ना बताकर आप ही से उल्टा पूछा जाए कि आप क्या चाहते हैं, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं इस तरीके के प्रोडक्ट से। फिर लोग कहते हैं ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो ये क्वेश्चनिंग कॉपी कहलाती है। नेक्स्ट है सजेस्टिव कॉपी। Suggestive copies are those advertisement copies which try to suggest the audience directly or indirectly for pursuing them to purchase a particular product. यानी अगर कोई भी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए हम परसुएट कर रहे हैं कि आपको ये क्यों खरीदना चाहिए, मेरिट्स वगैरह ही बताए जाते हैं, तो उसको हम सजेस्टिव कॉपी कहते हैं कि आई एम गिविंग यू अ सजेशन टू परचेज दिस प्रोडक्ट। इट इज पर्टिकुलरली यूजफुल in those products where the prospects are confused about the quality of different brands. For example, advertisement done through Medifact about Complan. यानी अगर आप किसी भी प्रोडक्ट के बारे में कुछ तथ्य बता रहे हैं, कुछ आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं कि why this product should be purchased over others, that means you are using a suggestive copy. Next, reason why copy. In this type of advertising copy, advertised message explains why it is necessary to have the product. यानी क्यों जरूरी है इस तरीके का प्रोडक्ट होना। जैसे मैंने आपको कल युवराज सिंह की एड दिखाई थी, तो वो ये बता रहे थे कि ये इंश्योरेंस होना क्यों जरूरी है। It gives definite positive points in favor of a particular product. For example, advertisement copy used in the insurance sector, जैसे LIC, वही मैंने आपको बताया। Fear copy, last है fear copy. Those advertising copy which appeal to sense of fear of prospects come under this category. This copies arouse deep interest in the prospect for protecting their valuables. For example, advertisement of locks, medical and insurance sector. वही जहाँ पर fear create किया जाए, या लॉक्स की अगर एडवर्टीजमेंट है कि आप लॉक यूज नहीं करेंगे तो आपके घर में चोरी हो जाएगी, या मेडिकल बेनिफिट्स के लिए, तो वो एक fear कॉपी होती है। या फिर
आपने देखा होगा कि एडवर्टीजमेंट्स आती है मूवी स्टार्ट होने से पहले कि इफ यू वुड यूज द टोबैको और इफ यू स्मोक then what would happen to you. So that is an example of fear copy. So here we have discussed 9 types of copies. If you have any question, you can ask. जो एड्स गवर्नमेंट बनाती है उनको क्या बोलते हैं? उनको भी एडवर्टीजमेंट से बोलते हैं। सागर इज आस्किंग कि क्वेश्चनल एड्स टीवी में आती हैं। यस आती हैं। एक एयरटेल की एड थी जिसमें वो कुछ लोगों को बिठाकर पूछती है कि आप क्या चाहते हैं, किस तरीके का नेटवर्क होना चाहिए, क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। या फिर एक डोमिनोज की एड आती थी जिसमें वो पूछते हैं कि आप क्या चाहते हैं, आपका पिज़्ज़ा कैसा होना चाहिए। पीपीटी में दे दूंगी, अभी दे दूंगी। टॉपिकल कॉपी यानी किसी इवेंट के दौरान आप उस चीज को एडवर्टीजमेंट देते हैं ताकि उसकी नीड क्रिएट की जा सके। जैसे कभी कभी मैचेस के दौरान कोल्ड ड्रिंक की ऐड आती है ताकि आप मैचेस के दौरान कोल्ड ड्रिंक पीने की इच्छा आप में जागृत हो पाए। टॉपिकल कॉपी। नैरेटिव जिसमें आप कोई स्टोरी क्रिएट करते हैं। जैसे आपने डेयरी मिल्क की ऐड देखी होगी। डेयरी मिल्क में वो गर्ल बाहर खा रही होती है एंड बॉय आस्क फॉर द चॉकलेट। वो एक स्टोरी क्रिएट की गई। नहीं, सजेस्टिव कॉपी और कंपेटिटिव अपील में फर्क है। कंपेटिटिव में आप हमेशा कंपैरिजन करेंगे। सजेस्टिव में आप सिर्फ ये बताएंगे कि आपको ये प्रोडक्ट क्यों खरीदना चाहिए। डिस्क्रिप्टिव कॉपी जहां पे आप सारे फीचर्स को डिस्क्राइब करते हैं। पर्सनालिटी कॉपी जब कोई पर्सनालिटी कोई भी सेलिब्रिटी उसको एंडोर्स करता है। रीजन वाई कॉपी जहां पे आप क्लियरली बताते हैं कि वाई इट शुड बी परचेज्ड। साइंटिफिक जिसमें आप कुछ टेक्निकल टर्म्स यूज करके
बताते हैं कि कैसे इसमें कुछ एडिड फीचर्स हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था। ज्यादातर फार्मास्यूटिकल्स या कॉस्मेटिक्स में यूज होता है ये। चलिए अब दोबारा आपकी पीपीटी पे चलते हैं। Give me a minute, let me have some water. Yeah. Now we'll talk about the structure of the advertisement copy. Attainment of advertising objectives largely depends on the way advertisement copy is designed. यानी आप अपने एडवर्टाइजिंग के ऑब्जेक्टिव्स को मीट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो लार्जली किस चीज पे डिपेंड करेगा कि आपने अपनी एडवर्टीजमेंट की कॉपी कैसे बनाई है। The advertising copy should be designed in a way that it is in the position to attract the attention of the prospective buyers. That it should have that power to attract the attention of prospective buyers. So that means कि इस तरीके से डिजाइन की जाए ताकि वो एटलीस्ट अटेंशन तो ग्रैब कर सके। अब the following are the basic elements of advertising copy. The first thing is the headline. अब सबसे पहले एक हेडलाइन होती है। अभी हम अगर प्रिंट की बात करें, the most important element of the advertising copy is its headline. हेडलाइन या फिर अगर हम वीडियो या ऑडियो एडवर्टीजमेंट की बात करें, उसमें हेडलाइन तो नहीं होती, उसमें टैगलाइन होती है। ठीक है, तो इफ हेडलाइन फेल्स टू अट्रैक्ट प्रॉस्पेक्ट्स, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एडवर्टीजमेंट आर वेस्टेड। अगर हेडलाइन ही आपकी अच्छी नहीं होगी तो लोग आगे बढ़ेंगे ही नहीं या बाकी की एडवर्टीजमेंट पे ज़्यादा ध्यान ही नहीं देंगे। इसीलिए हेडलाइन जो है वो आपकी बहुत अट्रैक्टिव होनी चाहिए, अटेंशन क्रिएट करने वाली होनी चाहिए, या फिर क्यूरोसिटी क्रिएट करने वाली होनी चाहिए, यानी लोग उसको जानने की इच्छा रखें कि किस चीज़ के बारे में बोल रहे हैं। जैसे हीरो होंडा का दे रखा है देश की धड़कन,
ये इनकी टैग लाइन है। नेक्स्ट है सब हेडिंग। सब हेडिंग उसके बाद बोली जाती है या लिखी जाती है। आफ्टर द हेडलाइन, the next is the subheadline. If the headline has rightly suggested the value of the product, the job of subheadline becomes quite easier. यानी अगर हेडलाइन ही आपकी बहुत अच्छी है तो सब हेडलाइन जो है उसका काम और आसान हो जाता है। सब हेडलाइन helps the reader to have more knowledge about the product. For example, सब हेडलाइन यूज्ड इन द हॉर्लिक्स एड, दूध में हॉर्लिक्स मिलाओ, दूध की शक्ति बढ़ाओ। यानी उन्होंने एक सब हेडिंग डाली है, यूजुअली वो उसको नहीं बोलते हैं, लेकिन अपनी एडवर्टीजमेंट में इस तरीके से उन्होंने ये सब हेडिंग डाली है जिससे लोग समझ सकते हैं कि हॉर्लिक्स दूध में मिलाना कितना ज़रूरी है, ताकि दूध की जो एक्चुअल पार है उसको बढ़ाया जा सके। तो सब हेडलाइन जो है वो आफ्टर हेडलाइन यूज की जाती है। Got it? नेक्स्ट स्लोगन्स है। A slogan is the group of words regularly used by the advertiser to impress the prospects about the product and the producer. यानी स्लोगन हम जब यूज करते हैं जब हम किसी भी चीज को बार बार रिपीट करके उस ब्रांड की याद दिलाना चाहते हैं। इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मेथड्स टू अटेन द एंड होल्ड द अटेंशन ऑफ कस्टमर्स, जिसे मैकडॉनल्ड्स का स्लोगन है आई एम लविंग इट। अब आप पूछेंगे कि हेडिंग में, सब हेडिंग में और स्लोगन में क्या डिफरेंस है? कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये डिफरेंस प्रिंट मीडिया में ज़्यादा होता है, जब हम एक हेडिंग लिखते हैं, सब हेडिंग लिखते हैं। लेकिन जब हम वीडियो की बात करते हैं तो ये तीनों चीज़ें सेम ही होती हैं। कोई स्लोगन लिख देता है, कोई हेडिंग बोल देता है उसको, लेकिन वो एक ही चीज़ है, क्योंकि ऑडियो वीडियो में इतना डिस्टिंक्शन नहीं होता। उसमें मेन जो फोकस होता है वो विजुअल्स पे होता है रादर देन ऑडियो। नेक्स्ट आता है टेक्स्ट और बॉडी। आफ्टर द हेडलाइन, सब हेडलाइन एंड स्लोगन comes the text of the advertising copy. The text, both the rational and emotional reasons are put forward to persuade. तो जो बीच में जो भी बोला जाता है एडवर्टीजमेंट में या दिखाया जाता है या लिखा जाता है वो सब एडवर्टीजमेंट के टेक्स्ट या बॉडी कहलाता है। फैक्ट्स एंड फिगर्स, जो अगर उसमें कुछ फैक्ट्स बताए गए हैं या कुछ फिगर्स शो की गई हैं या टेबल्स शो की गई हैं तो वो भी बॉडी और टेक्स्ट का पार्ट होता है। लास्ट है क्लोजिंग आइडिया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एडवर्टाइजिंग कॉपी शुड क्लोज द आइडिया विद इनफ इंफॉर्मेशन, डायरेक्शन and motivation for the customer to act. Various types of closing idea are buy now, visit the nearest store today, या limited edition, या फिर सेल क्लोजेस इन 2 days। इस तरीके की कुछ लाइनें लिखी या बोली जाती हैं जो लास्ट में बताई जाती हैं ताकि लोग जल्दी से जल्दी खरीद सकें, या फिर टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। इस तरीके के कुछ क्लोजिंग आइडिया होते हैं। अब कॉपी को टेस्ट करना ज़रूरी है। जब आप कोई कॉपी बना लेते हैं, एडवर्टीजमेंट की कॉपी बना लेते हैं, तो उसको टेस्ट करना भी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आप टेस्ट नहीं करोगे, सपोज आपने बना ली और सीधा टेलीविज़न पे डाल दी या प्रिंट मीडिया न्यूज़पेपर में भेज दी, तो आपको फीडबैक कैसे मिलेगा कि आपने ठीक भी किया या नहीं? इसीलिए पहले टेस्ट किया जाता है कि जो हम चाहते हैं ये वो रिजल्ट क्रिएट कर रही है या नहीं कर रही है। तो कॉपी टेस्टिंग इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट. It is the tool to evaluate
the effectiveness of advertisement before it appears in the final form. यानी इसको हम टेस्टिंग क्यों करते हैं, ताकि फाइनली कोई चीज आने से पहले एक बार टेस्ट हो जाए. In simple words, copy testing is the method to control the effectiveness of final advertisement. तो जो फाइनल आएगी उससे पहले उसकी इफेक्टिवनेस को कंट्रोल करने के लिए ये टेस्टिंग की जाती है. अब यहाँ पे कुछ टाइप्स ऑफ कॉपी टेस्टिंग है. एक है प्री टेस्टिंग मेथड, एक है पोस्ट टेस्टिंग मेथड. तो प्री टेस्टिंग मेथड में क्या क्या है? प्री टेस्टिंग, as the name suggests, refers to the testing the advertisement copy prior to its running. यानी एक बार तो हम पहले देखते हैं, रन करने से पहले. जैसे कोई एडवर्टीजमेंट बनाई, उसको टेलीविजन पे ऑन एयर करने से पहले हम खुद टेस्ट करते हैं कि ये ठीक से चल रही है या नहीं चल रही है. So this test is run to find out the plus and minus points. Here some methods are given. One is the checklist method. Checklist method tests the various aspects of advertisement copy. This method ensures that no important feature is omitted. तो हम ना एक चेकलिस्ट बना लेते हैं कि ये होना चाहिए. सपोज मैंने कोई एक एडवर्टीजमेंट बना ली, उसके बाद मैंने लिख लिया कि इसमें ये होना चाहिए, ये होना चाहिए. फिर मैं उस पर चेक टिक लगाती गई कि ये भी है, ये भी है, ये भी है, ऐसा भी है, ठीक है, ठीक है. तो वो चेकलिस्ट मेथड होता है. एक होता है कंज्यूमर जूरी मेथड, जिसमें कुछ कंज्यूमर्स को बुलाया जाता है, उनकी एक जूरी बनाई जाती है, ग्रुप बनाया जाता है और उनको वो एडवर्टीजमेंट दिखाई जाती है और उसके बारे में पूछा जाता है कि ये आपको अट्रैक्ट कर रही है या नहीं, आपका इंटरेस्ट क्रिएट कर रही है या नहीं. तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. थर्ड है कूपन रिस्पॉन्स मेथड. Under this method, advertiser offers to send something complimentary to the reader on receipt of letter from him. The offer can be of a free sample or a product. जैसे ये ज़्यादातर यूज होता है प्रिंट में. अब मुझे कोई प्रिंट एडवर्टीजमेंट देनी है, लेकिन पहले पूरे इंडिया में देने की बजाय मैं सिर्फ दिल्ली में देकर देखती हूँ और उसमें मैं एक कूपन डाल देती हूँ कि अगर आप मुझे अपना रिस्पॉन्स देंगे कि आपको ये एडवर्टीजमेंट कैसे लगी, तो मैं आपको फ्री सैंपल दूंगी. कूपन रिस्पॉन्स मेथड. नेक्स्ट है इंक्वायरी टेस्ट मेथड. अंडर इंक्वायरी टेस्ट, इफेक्टिवनेस ऑफ एडवर्टाइजिंग कॉपी इज मेड बाय द मीन्स ऑफ इंक्वायरी मेड फॉर द प्रोडक्ट. In it, 2 or more ads are run on the limited scale. The ad which gets the maximum inquiry is said to be effective. यानी एक जैसी सी 2 एड्स बनाई जाती हैं अलग अलग तरीके की, उनको ऑन एयर किया जाता है एक लिमिटेड एरिया में और उसके रिस्पॉन्स लिए जाते हैं, लोगों से पूछे जाते हैं. जिसके बारे में ज्यादा इंक्वायरी आती है, लोग ज्यादा पूछने की कोशिश करते हैं, उसको ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है. तो ये कुछ मेथड है प्री टेस्टिंग के, यानी पहले फाइनल एडवर्टीजमेंट रिलीज करने से पहले उसकी टेस्टिंग की जाती है. दूसरा मेथड है पोस्ट टेस्टिंग मेथड, यानी एक बार एडवर्टीजमेंट हो गई ऑन एयर, उसके बाद टेस्ट किया जाता है. तो इसमें फर्स्ट है रिकॉल टेस्ट, जिसमें ये देखा जाता है कि कितने लोग एक बार एडवर्टीजमेंट देखने के बाद उसको रिकॉल कर पाए. सपोज मैंने आज आपको 4 एडवर्टीजमेंट बताई, अब मैं कल आके पूछती हूँ कि बताओ किस एडवर्टीजमेंट में क्या था, तो जो सबसे अच्छी लगी होगी आप उसको ज्यादा रिकॉल कर पाएंगे. तो रिकॉल वैल्यू पता चलती है हर एडवर्टीजमेंट की. सेकेंड है रिकग्निशन टेस्ट. रिकग्निशन टेस्ट में आपने एडवर्टीजमेंट देख ली, उसके बाद आपको वो प्रोडक्ट दिखाया जाएगा या मार्केट में आप जाएंगे तो आप कितनी जल्दी उसको रिकग्नाइज कर पाएंगे कि ये मैंने एडवर्टीजमेंट देखी थी, अच्छा ये वो प्रोडक्ट है. तो उससे पता चलेगा कि उसकी रिकग्निशन वैल्यू क्या है. और लास्ट है सेल्स टेस्ट, जिसकी जितनी ज़्यादा सेल होगी उससे हमें पता चलेगा कि उसकी एडवर्टीजमेंट उतनी ही ज़्यादा इफेक्टिव है. तो ये सारा एडवर्टीजमेंट टेलीविजन पे रिलीज होने के बाद ही
पता लगाया जा सकता है। ये कुछ टेस्ट थे। एक है स्प्लिट एंड रन टेस्ट। Under this method, the advertisement copy is prepared in 2 ways and run in one medium. Then the coupon response gives an evaluation of advertisement copy. यानी इस मेथड में स्प्लिट एंड रन में ये भी उसी तरीके से है जो मैंने आपको पहले बताया कूपन रिस्पॉन्स वाला, लेकिन उसमें एडवर्टीजमेंट रिलीज होने से पहले करते हैं वो, यहाँ पे बाद में करते हैं। 2 अलग अलग एडवर्टीजमेंट बनाए, दोनों को रिलीज कर दिया, उसके बाद कूपन देके ये देखा कि किसके ऊपर अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। और लास्ट है इंक्वायरी टेस्ट। इसमें भी इंक्वायरी जिसकी ज़्यादा आती है उसको अच्छा माना जाता है, लेकिन ये भी आफ्टर रिलीज है। सो सिर्फ यही डिफरेंस है उनमें और इनमें। प्री वाली में रिलीज होने से पहले ही देख लिया जाता है छोटे से एरिया पे सैंपल पे रन करके, और पोस्ट में जब पूरी एडवर्टीजमेंट रन हो जाती है पूरे एरिया में उसके बाद टेस्ट किया जाता है कि वो ठीक चल रही है या नहीं चल रही है। नहीं चल रही होती तो चेंज कर दी जाती। सो दैट्स ऑल अबाउट द एडवर्टाइजिंग कॉपी। अब मैं आपकी स्क्रीन पर आ जाती हूँ और कुछ क्वेश्चन है तो बताइए। अब मैं कल की तरह भूल ना जाऊं इसलिए पहले आपको लिंक दे देती हूँ, जब तक आप अपने क्वेश्चंस रेज कीजिए। मैंने आपके साथ अभी अभी एक लिंक शेयर किया है, जस्ट गो टू दैट लिंक। उसमें आज की पीपीटी भी अपलोड कर दी है, इवन जो नेक्स्ट क्लास में टॉपिक डिस्कस होगा टाइप्स ऑफ मीडिया मेरिट्स, जो आज हमें करना था बट वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, so I would not be able to discuss that topic today, but we'll discuss in the next class, so that is also included in that particular PPT. Just have a look there and let me know if you are not able to open it. लिंक दे दिया है मैंने, लिंक आपका सेम रहता है, हर बार सेम लिंक है। आज आप उस लिंक को शेयर वो कर लीजिए, सेव कर लीजिए अपने पास, और वही लिंक रहेगा। सारी पीपीटी सेम लिंक पर ही मिलेंगी आपको। मैं बस अपलोड कर देती हूँ, हर बार अलग लिंक नहीं होता,
वो मेरी ड्राइव का लिंक है, जैसे जैसे क्लासेस होती जाएंगी उस पर पीपीटीज आती जाएंगी। श्वेता क्या क्वेश्चन है तुम्हारा? आई थिंक आई मिस्ड योर क्वेश्चन, राइट योर क्वेश्चन अगेन अगर वो मिस हो गया है तो। पोस्ट टेस्टिंग मेथड मीन्स when your advertisement has gone on air, it has been released on the television, then you test it whether it is going right or not. That is post testing. Post यानी बाद में, यानी कोई भी एडवर्टीजमेंट रिलीज होने के बाद जब हम टेस्ट करते हैं कि वो सही जा रही है या नहीं, उसको पोस्ट टेस्टिंग कहते हैं। किसी भी एडवर्टीजमेंट को रिलीज करने से पहले हम एक शॉर्टर ग्रुप में अगर उसे दिखाते हैं कि भाई ये ठीक है, तो वो प्री टेस्टिंग होती है, उसके बाद हम रिलीज करते हैं। सेल्स टेस्ट यानी अगर मेरे प्रोडक्ट की ज्यादा सेल हो रही है तो यानी इफेक्टिव है, टेस्ट में पास हो गई है एडवर्टीजमेंट, अदरवाइज फेल हो गई है, दैट इज सेल्स टेस्ट। एग्जाम प्रिपरेशन के लिए मेरी पीपीटीज, जिन पीपीटीज में कंटेंट है वो तो इनफ है, लेकिन जिसमें सिर्फ पॉइंटर्स हैं उसके लिए आप बुक को रेफर कर सकते हैं। मैंने इसलिए आपको एक बुक भी बताई है और हमारा मटेरियल भी अवेलेबल है। तो सिर्फ पीपीटी इनफ नहीं होंगी क्योंकि इतना ज़्यादा कंटेंट पीपीटी में नहीं आ सकता। पीपीटी इज जस्ट मेंट फॉर द पॉइंटर्स। फिर भी मैंने आपकी इस पीपीटी में काफ़ी कंटेंट डाला है, अदरवाइज पीपीटी तो पॉइंटर्स के लिए होती है, सिर्फ उसका पर्पस ही खत्म हो जाएगा अगर मैं उसी में कंटेंट डालने लगूंगी तो पॉइंटर्स कैसे इनफ हो सकते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। अगर आपको यानी क्लास अटेंड की है और आप सिर्फ पॉइंटर से एक्सप्लेनेशन खुद से लिख सकते हैं तो दैट इज वेल एंड गुड, देन माय पीपीटी वुड बी इनफ। बुक सीबी गुप्ता सर की बुक है, एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग। C for Chennai, B for Bombay, C.B. Gupta. SOL content is also available. Pre and post testing, advertising effectiveness का yes ये पार्ट है, क्योंकि आपको पता चलता है कि आपकी एडवर्टीजमेंट ठीक चल रही है या नहीं चल रही है, या जब आप रिलीज करेंगे वो चलेगी या नहीं चलेगी। तो पहले से टेस्ट करके रखते हैं ताकि बाद में ऐसा ना हो मैंने बहुत बड़े लेवल पे अपनी एडवर्टीजमेंट को रिलीज कर दिया लेकिन लोगों को उसने अट्रैक्ट किया ही नहीं, तो मेरा सारा पैसा बर्बाद जाएगा। इसीलिए पहले से टेस्ट करके रखते हैं कि सही जा रहा है या नहीं जा रहा है। बुक का नेम सीबी गुप्ता सर की बुक है, डॉक्टर सीबी गुप्ता। सी फॉर चेन्नई, बी फॉर बॉम्बे, सीबी गुप्ता। हाँ, टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नीरू मैम की भी ठीक है, मैंने आपको बताया था। रुचि गुप्ता मैम की भी ठीक है, नीरू कपूर मैम की भी ठीक है बुक, कोई भी बुक ले सकते हैं आप। कंटेंट सब में इजी है, आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे इजीली। क्लास लेते रहिए, सब कुछ समझ आ जाएगा। कूपन रिस्पॉन्स टेस्ट में आप पहले दिखाते हैं एडवर्टीजमेंट एक छोटे ग्रुप को, उसके बाद उनको कुछ सैंपल या कुछ गुडीज देने का वो करते हैं, उनको अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि वो रिस्पॉन्स दें। अगर वो आपको रिस्पॉन्स देंगे तो आप उनको फ्री सैंपल देंगे। कूपन रिस्पॉन्स
कभी कभी होता है ना कि अगर आप फीडबैक देंगे तो आपको ये एक्स्ट्रा चीज मिलेगी या आपको डिस्काउंट मिलेगा, वो भी एक कूपन रिस्पांस की तरीके से है। टेक्स्ट और बॉडी यानी हेडलाइन को छोड़ के जो भी एडवर्टीजमेंट में बोला जाता है वो उसके टेक्स्ट और बॉडी होता है। टेक्स्ट सिर्फ प्रिंट मीडिया के लिए यूज करेंगे, बॉडी हम ऑडियो या वीडियो एडवर्टीजमेंट के लिए भी यूज करेंगे। तो उसका जो कंटेंट है, जो भी वो बोल रहे हैं, जो भी दिखा रहे हैं, वो सारा टेक्स्ट और बॉडी का पार्ट होगा। कूपन रिस्पांस में फीडबैक दिया जाता है। इंक्वायरी टेस्ट में उनको कोई कूपन या उनको कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाता, वो खुद से आके इंक्वायरी करते हैं आपके प्रोडक्ट के बारे में और उससे आपको पता चलता है कि हाँ लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। चेकलिस्ट मेथड, जिसमें आप सपोज जैसे आपको कहीं के लिए पैकिंग करनी है, ठीक है, आपने अपना बैग रेडी कर लिया, उसके बाद आपने लिस्ट बना रखी थी, उसमें चेक करेंगे ये हो गया, ये हो गया, ये है, ये नहीं है। तो इस तरीके से आप एडवर्टीजमेंट बनाने के बाद एक चेकलिस्ट लेकर बैठ सकते हैं कि उसमें ये होना चाहिए, ये होना चाहिए एडवर्टीजमेंट कॉपी में, और फिर उस पर टिक लगाते जाएंगे। वो चेकलिस्ट मेथड है टेस्ट करने का। अच्छा ठीक है आयुषी, मैं बात कर लूंगी कल की क्लास के लिए कि इकोनॉमिक्स के साथ हमारी क्लैश ना हो। इकोनॉमिक्स कौन सी टीचर की है, एक बार टीचर का नाम और बता दो मुझे। रिकॉर्डेड लेक्चर्स मैं आपको प्रोवाइड नहीं करवा सकती हूँ, वो एसओएल की तरफ से ही रिलीज होंगे। तो वो जब एडिटिंग वगैरह होके रिलीज होते हैं वो जब ही होंगे। आई कांट डू एनीथिंग बिकॉज द रिकॉर्डिंग इज नॉट अवेलेबल विद मी, दे मैनेज एवरीथिंग। टेनियर वुड नॉट बी सफिशिएंट बिकॉज उसके आंसर्स इतने रिलायबल नहीं होते। टेनियर में क्वेश्चन देख लो, उसके आंसर्स बुक में से देखो। ओके सरबजीत कौर मैम की क्लास है, मैं बात कर लूंगी एक बार। अब ये तुम्हारा कंफ्यूजन बना रहता है कि मार्च में है या अप्रैल में है, मैं एक बार बात ही कर लूंगी आज एसएल में। चलो ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास टुमारो, एंड टुमारो वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ मीडिया, its merits and demerits, and the media scheduling. महेश जी आप रिकॉर्डिंग बंद कर सकते हैं। हाँ जी ठीक है मैं, ठीक है। ओके थैंक यू।